Hi everyone, welcome back to my channel. I am Shweta and I am a recent graduate from IIM Kozhikode. Today in this video, I will be discussing on a very important topic that a lot of students and job seekers have in mind, which is what are the differences between a government sector job and a private sector job, and which job should they seek and work hard for. So before starting with the video, मैं आपको अपना background के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, which is going to help you understand that why am I making this video. So I did my BTech in the year 2019 from NSIT Delhi, and post that I worked with GAIL India Limited as a senior engineer. So GAIL is a public sector unit which can be considered kind of a government job. And after that, in the year 2022, I gave my CAT exam and I got into IIM Kozhikode, and hence I switched to the private sector. So I believe कि मेरे पास government sector as well as private sector का enough exposure है कि मैं आपको clearly बता सकूँ that what are the differences between both the sectors and एक clear picture provide कर सकूँ आपको to make your own decision. Coming to the most important part, which is the salary part that I will be discussing first. So when we see the salary of a government employee, we can see that the salary range starts from 25,000 per month, which is of the grade C SSC CGL exam, and it ranges to around 80-90,000 per month, which is offered by the public sector units, which include GAIL, ONGC, IOCL, and also BARC, ISRO, etc. So this salary might be considered less, but then there are a lot of other perks like medical benefits, house allowance. So overall, ये salary enough होती है एक decent life जीने के लिए. Now coming to the private sector. So in the private sector, salaries can start from as low as 5 to 10,000 per month, and then they can go as high as 1.5 lakh per month, which depends on the qualifications. So private sector में बस hike होता रहता है तो salary बढ़ती रहती है, जिसके बारे में हम आगे discuss करेंगे. Now coming to the second point, which is about the growth. So यहाँ पर मैं personal growth के बारे में पहले बात करना चाहूँगी. So if we see the personal growth, it is relatively low in the government sector. I'm not saying that there is no growth, but as compared to the private sector, government sector में थोड़ा सा comfort zone में लोग आ जाते हैं और इसलिए फिर अपनी personality पर काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, because एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है एडिशनली इतना. एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर लोग पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपके अराउंड जब 4-5 लोग या आपकी जो पूरी टीम है, इफ़ एवरीबडी इज़ ड्रिवन टुवर्ड्स देयर पर्सनल गोल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद देयर प्रोफेशनल गोल्स, तो फिर आपका भी मन करता है बिकॉज यू आर स्टेइंग इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट. Third, coming to the professional growth. So in professional growth, I mean the hike that you will get and also the kind of skills you need. So if we see in the government jobs, the salary hike is around 3 to 5% per year. So just to give you an example, कि अगर किसी की salary 1 lakh per month है तो next year वो 1,03,000 per month हो जाएगी. एंड प्रमोशंस की बात करूँ तो प्रमोशंस 3 से 4 साल पर होते हैं, विच इज़ अ फिक्स टेन्योर. ऐसा बहुत कम बार होता है कि अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है तो उसको जल्दी प्रमोट कर देते हैं. इट इज़ नॉट सीन इन द गवर्नमेंट सेक्टर. एंड ऑल्सो इफ़ वी सी तो जो हाइक्स होते हैं तो प्रमोशन के टाइम पर एक एडिशनल हाइक मिल जाता है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में, बट इट इज़ रिलेटिवली वेरी लेस कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी सी इन द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में इन जनरल 10 to 15% हाइक मिल जाता है लोगों को इन द सेम जॉब. एंड इफ़ पीपल स्विच जॉब्स, तो जॉब स्विच करने पे 30%, 50% एंड कई बार तो 100% हाइक भी मिल जाता है. So this is about private sector, but one disadvantage here in the private sector is that आपको constantly खुद को upgrade करना पड़ता है professionally, and if you're not doing so, then you will not be fit for the role. Next, coming to the work culture. So अगर मैं वर्क कल्चर देखूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में रिलेटिवली कम कॉम्पिटिटिव होता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर. अगेन द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ होता है वो सारा का सारा आपके स्किल सेट्स पे डिपेंड करता है. आप कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कितने लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. दैट इज़ वाई पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर आर मोर कॉम्पिटिटिव. एंड अगर वर्कलोड की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वर्कलोड आजकल काफ़ी बढ़ गया है. इट इज़ नॉट लाइक इट वाज 10 years बैक. काम काफ़ी होता है, लोग 9 AM to 7 PM 8 PM तक भी काम कर रहे होते हैं कुछ ऑफिसेज में. बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर में अगर सेम टाइम पर भी लोग काम कर रहे हैं तो द प्रेशर इज़ वेरी मच मोर एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट जॉब. Now coming to another major factor that you should consider while choosing your job is about job security and stability.
तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर जैसी जॉब सिक्योरिटी कहीं और नहीं मिल सकती है। तो देयर आर टाइम्स जब रिसेशन होता है या फिर जैसे अभी कोविड-19 आया था, उस टाइम पर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स पे इम्पैक्ट नहीं आता। वही अगर हम प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर में अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर जॉब्स, या फिर अगर यूएस इकोनॉमी इम्पैक्ट होता है तो उस टाइम पर आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई रातों रात जॉब से निकाल देगा। देयर आर टाइम्स कि अगर ऐसा कंपनीज निकालती भी हैं तो वो आपको 6 महीने का कॉम्पनसेशन देती हैं, बट स्टिल अगर हम थ्रू आउट दी होल लाइफ जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही अवेलेबल होती है। टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक चीज़ होती है, काफ़ी लोग इसको एडवांटेज कंसिडर करते हैं, काफ़ी लोग डिसएडवांटेज कंसिडर करते हैं, वो है कि आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज जनरली कीप मूविंग अराउंड द कंट्री इन 3 to 4 years। तो नई सिटी में जाकर एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एंड पीपल हु हैव किड्स उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है नए स्कूल में एडमिशन कराना, नए स्कूल में बच्चों को एडजस्ट करना। एज कम्पेयर टू दैट प्राइवेट सेक्टर में मे बी इनिशियल लोकेशन आप खुद से चूज़ नहीं करते, बट उसके बाद आपको जहाँ पर भी स्विच कर जाना है, जो भी सिटी में रहकर काम करना है, इट बिकम्स वेरी ईजी। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर में आजकल वर्क फ्रॉम होम का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, सो अ लॉट ऑफ पीपल गेट दी अपॉर्चुनिटी कि वो घर बैठे बैठे काम कर लेते हैं, सो दे कैन स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, स्टे इन देयर होम टाउन एंड स्टिल हैव अ वेरी गुड अर्निंग। तो आपको दोनों सेक्टर्स में टॉप जॉब लेने के लिए क्या करना होगा? तो अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे कि SBI PO, SSC CGL, काफ़ी सारे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके साथ ही साथ UPSC का एग्ज़ाम होता है। आप ये सब देकर ग्रेड A जॉब्स अटेन कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा जॉब करना है, आपको अच्छा अर्न करना है, तो यू कैन डू MBA फ्रॉम अ टॉप टियर कॉलेज, जिसके लिए CAT एंड ZAT जैसे एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको CAT के एग्जाम के बारे में और जानना है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, सो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ जिनमें मैंने काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करी हुई हैं। Another very good option is that if you get a direct placement from a good undergrad college, जैसे कि अगर आप किसी भी IIT या NIT से अपना BTech करते हैं, या फिर आप सेंट स्टीफन या SRCC ऐसे कॉलेजेस में अपना अंडरग्रेड करते हैं, तो यू गेट अ डायरेक्ट जॉब फ्रॉम द कैंपस। तो वो काफ़ी ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन होता है। एक द अदर ऑप्शन दैट यू हैव इज़ कि आप कोई IT जॉब के लिए ट्राई करें। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर कोडिंग योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू अप्लाई फॉर दोज जॉब्स, एंड इफ़ यू क्रैक इट तो आपका कॉलेज के लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन अ लॉट ऑफ Tier 3 college students get these kind of jobs. So you can try all of these options. Now coming to the question that which sector should you choose? So मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि दोनों ही सेक्टर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ के लिए ट्रेड ऑफ करना है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मुझे लगता है आपको कंसिडर करने चाहिए, वो है कि इफ़ यू आर सीकिंग फॉर ए नेक्स्ट फैक्टर, कि अगर आपको लगता है आप चाहते हैं कि आपका हर 5 साल थोड़े अलग हों, या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहे, कि आपको चैलेंजेस पसंद हों, कि जैसे मुझे नहीं पता कि 5 years आफ्टर दिस टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग, व्हाट न्यू थिंग्स आई विल बी लर्निंग, तो इस केस में आप प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर आपको रिलेटिवली स्टेबल जॉब चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब के कंपैरिजन में फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। Another very important factor that I consider is the family background that you come from. तो अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास अच्छा खासा फैमिली कुशन है, and if you want to go for a private job, then it is a good option. But अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, एंड अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू कवर योर फैमिलीज मेडिकल एक्सपेंसेस, एंड आप एक सिक्योर्ड लाइफ दे पाएंगे अपने पेरेंट्स को, अपने किड्स को, अपनी फैमिली को। सो इन दैट केस यू शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। So I believe this was all that I wanted to cover. अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मुझे कंसिडर करने चाहिए थे, या फिर इन जनरल लोगों को कंसिडर करने चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो एंड लेट अदर्स ऑल्सो नो दोज फैक्टर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ ऐसी करियर रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू हेल्प आउट you guys as much as I can. Guys, do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.